Namaskar. In this video of strategic marketing, we'll discuss about industry environment analysis. So let's start. First of all, what is industry? Industry is a group of firms that produce similar products or offer similar services that are close substitute. Now the next question crops up, what is the primary objective to study industry analysis? Yes, of course, the purpose of studying industry analysis is to determine the attractiveness of an industry to current and potential participant, as well as to study the structure and dynamics of the industry. Now, compared with the general environment, the industry environment has more direct effect on firms' strategic competitiveness and ability to earn above average returns. Now, to understand the nature of competition within industry, a framework was developed by Michael E. Porter. As you see in the diagram, there are 5 forces which impact the industry, and this model was given by Michael E. Porter, where he want to analyze how the company assess the nature of industry competitiveness and develop corporate strategies accordingly. The strength of the 5 forces will determine the level of profit within an industry that a competitor can expect to make. Through this model, Porter classifies 5 main competitive forces that affect market and industries. These forces are threat of new entrants, bargaining power of suppliers, bargaining powers of buyers, threat of substitute products, rivalry among competitive firms. Through sound corporate strategies, a company will aim to shape these forces to its advantage to strengthen the organization position in the industry. इंडस्ट्री एनालिसिस को समझने के लिए माइकल ई पॉटर ने एक मॉडल दिया था, जिस मॉडल को हम 5 फोर्सेस मॉडल के नाम से जानते हैं। ये मॉडल माइकल ई पॉटर द्वारा दिया गया था, जिसके अंदर कंपनीज इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिवनेस और उसके को स्टडी करती हैं और उनके अकॉर्डिंग कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज़ को डेवलप करती हैं। तो जो मेन पर्पस था इस मॉडल को डेवलप करने का, वो ये था कि किस तरह से जो कंपनीज़ हैं वो स्ट्रैटेजी बनाएं ताकि वो एक्सटर्नल फोर्सेस को आइडेंटिफाई कर सकें, एनालाइज कर सकें और मैनेज कर सकें इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट। इस टूल के माध्यम से जो 5 फोर्सेस होती हैं इंडस्ट्री के अंदर, वो कंपनीज़ को इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन विद इन इंडस्ट्री और उसका प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताने की कोशिश करती हैं। जो 5 फोर्सेस पॉटर्स ने बता रखे हैं, वो मेन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो that are threat of new entrants, bargaining power of suppliers, bargaining power of buyers, threat of substitute products and rivalry among competitive firms. First force is threat of new entrants. इसको समझते हैं। ये फोर्स डिटरमाइन करती है कितना आसान या मुश्किल है किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एंटर करना। अगर इंडस्ट्री बहुत प्रॉफिटेबल होती है तो हर कोई उसके अंदर एंटर करना चाहता है और जो राइवलरी है बहुत इंटेंसिफाइड हो जाती है, स्पेशली जब कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है या जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं दे कैन नॉट रिटालिएट और कोई गवर्नमेंट रेगुलेशंस नहीं है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में, या जो कस्टमर लॉयल्टी है बहुत कम है, या जो प्रोडक्ट्स है बहुत ज़्यादा आइडेंटिकल है, तो वहाँ पर उस इंडस्ट्री के अंदर एंटर करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन कुछ एक ऐसे बैरियर्स होते हैं जो कि न्यू कमर्स के लिए मुश्किल होते हैं उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एंटर करना, लाइक इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का बेनिफिट एग्जिस्टिंग फर्म्स को ही मिलता है। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल मे बी इन द एरिया ऑफ प्रोडक्शन, रिसर्च, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फिनेंसिंग एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बिजनेस। दूसरा है प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। जो प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन है एक पावरफुल बैरियर का काम करता है, स्पेशली व्हेन ब्रांड रॉयल्टीज़ वेरी हाई, तो वहाँ पर न्यू कॉम्पिटिटर्स को एंटर करना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। नेक्स्ट इज कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। Capital requirements for entry in the field may create a barrier, particularly if the capital requirement is high for projects. जहाँ पे gestation period भी बहुत ज़्यादा है, capital requirements बहुत huge है, वहाँ पर किसी नई फर्म में एंटर करना, किसी नई पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एंटर करना किसी भी फर्म के लिए मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है स्विचिंग कॉस्ट। अगर स्विचिंग कॉस्ट हाई होगी तो वहाँ पर भी कस्टमर को अट्रैक्ट करना मुश्किल हो जाता है। अगला है एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स।
जो नया एंट्रेंट है, जो नया कॉम्पिटिटर है, उसका इतना एक्सेस नहीं होता सभी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का, जैसे कि इस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशंस के पास होता है। तो जिसकी वजह से जो नया एंट्रेंट आ रहा है उसको हाई कॉस्ट इनकम करनी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ इन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट ने कुछ लिमिट लगा रखी है किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, कुछ लाइसेंसिंग पॉलिसी है गवर्नमेंट की, या गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे मेजर्स लगा रखे हैं, लाइक रॉ मटेरियल के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन है, सप्लाई के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, प्राइस रेगुलेशन लगा रखे हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं लाइक सेफ्टी नॉर्म्स हैं, वाटर एयर पॉल्यूशन के नॉर्म्स हैं जो फॉलो करने ज़रूरी होते हैं, वहाँ पर भी किसी नए कॉम्पिटिटर को एंटर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आइए थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट का एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि आपको मालूम है हमारे देश के अंदर जब जियो एंटर हुआ मोबाइल सेगमेंट के अंदर, तो एक मोबाइल टैरिफ वॉर स्टार्ट हो गया। पहले ह्यूज प्लेयर्स हुआ करते थे, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल। जियो के आने से जो एयरटेल है उसका जो शेयर है बहुत डिक्लाइन हो गया। जो मेजर प्लेयर्स थे वोडाफोन और आइडिया, उनका मर्जर हो गया और जियो ने बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा अपना जो सब्सक्राइबर बेस है बहुत जल्दी स्पीडली तैयार कर लिया। यानी एक दिन के अंदर उन्होंने लगभग 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स कर लिए। तो जिसकी वजह से अब ये थ्रेट ऑफ एंट्री को समझिए कि पहले एयरटेल, टाटा, BSNL एंड वोडाफोन और आइडिया दे वर द मेजर प्लेयर्स, और एक थ्रेट हुआ नया एंट्रेंट कौन था? जियो। तो जियो के आने से उनका बिज़नेस एकदम से डाउनफॉल हो गया। और दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं पतंजलि का। जैसे आपको मालूम है FMCG सेक्टर के अंदर प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, डाबर है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, दे वर द मेजर प्लेयर्स। लेकिन जैसे पतंजलि ने FMCG सेगमेंट में एंटर किया तो इन सब की जो सेल्स है, HUL है, ये जो डाबर है, मैरिको है, इन सब की सेल्स बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। तो दिस इज़ अ बेस्ट एग्जांपल कि जब कोई नया एंट्रेंट आ जाता है पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर तो जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनको सर्वाइव करना कितना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। देखिए जो कस्टमर्स होते हैं उनके पास पावर होती है कि वो हमेशा लोअर प्राइस प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं और हाई प्रोडक्ट क्वालिटी की डिमांड करते हैं इंडस्ट्री प्रोड्यूसर से। जब उनकी बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग होती है तो एग्जर्ट कर सकते हैं प्रोड्यूसर के लिए कि वो अपने प्राइसेस कम करे और क्वालिटी इन्हांस करे। और इसको अगर रेवेन्यू मॉडल के हिसाब से समझे तो अगर प्रोड्यूसर अपने प्राइसेस कम कर देगा तो उसके लिए कम प्रॉफिट रहेगा, और अगर उन्हें क्वालिटी को इन्हांस करेगा तो ऑफकोर्स उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। तो बोथ द सिनेरियोज रिजल्ट इन लोअर प्रॉफिट फॉर प्रोड्यूसर्स। तो जो कस्टमर्स हैं उनकी बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग तब हो जाती है जब जो स्विचिंग कॉस्ट है टू द अदर सप्लायर्स वो बहुत कम है, या जो सब्स्टिट्यूट्स हैं बहुत ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट के अंदर, और जो परचेजेस हैं वो एक बहुत लार्ज वॉल्यूम में है एंड लार्ज वॉल्यूम बायर्स कैन बार्गेन फॉर फेवरेबल टर्म्स। इसके साथ साथ जब कस्टमर्स बहुत प्राइस सेंसिटिव होते हैं और दे थ्रेटन टू बैकवर्ड इंटीग्रेट, तब भी जो कस्टमर्स होते हैं उनकी बाइंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ जब जो हमारे डिफरेंशिएटेड इंडस्ट्री है वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स है दैट आर वैल्यूड बाय द कस्टमर रिड्यूस देयर थ्रेट। यानी कि जब हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो इट एक्ट एज अ थ्रेट टू द प्रोड्यूसर, तो तब भी उनकी जो कस्टमर्स उनकी बाइंग पावर स्ट्रॉन्ग हो जाती है। यानी कि जो बायर्स के पास ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स हैं दे कैन बार्गेन पावरफुली। नेक्स्ट है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स का मतलब होता है जो बार्गेनिंग पावर है सप्लायर्स की वो स्ट्रॉन्ग तब है जो वो सप्लायर्स को अलाउ करते हैं कि वो प्रोडक्ट को बहुत हाई प्राइस पे सेल करे और क्वालिटी को डिग्रेड कर दे अपने बायर्स के लिए। तो इससे क्या होगा, डायरेक्टली इम्पैक्ट द बाइंग फर्म्स प्रॉफिट, क्योंकि उनको ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा फॉर द मटीरियल्स। और सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर स्ट्रॉन्ग तब होती है जब जो सप्लायर्स होते हैं बहुत कम होते हैं और बायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, या जो सप्लायर्स हैं बहुत लार्ज हैं, दे थ्रेटन टू फॉरवर्ड इंटीग्रेट, या फिर फ्यू सब्स्टिट्यूट्स रॉ मटेरियल एग्जिस्ट, या फिर कॉस्ट ऑफ स्विचिंग रॉ मटेरियल स्पेशली हाई। तो जिसकी वजह से जो बार्गेनिंग पावर है सप्लायर्स की वो स्ट्रॉन्ग होती है। एक एग्जांपल से समझते हैं, जो टोयोटा है उसकी जो बार्गेनिंग पावर है वो सप्लायर्स की वो वीक है। अब इसको कैसे समझते हैं, टोयोटा के पास बहुत सारे सप्लायर्स हैं जो उनको स्पेयर पार्ट्स लाइक मटेरियल है, प्लास्टिक, कंप्यूटर्स, कोडिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम, फ्यूल, ये सप्लाई करते हैं। यानी इनके पास हंड्रेड्स ऑफ सप्लायर्स हैं।
तो जिसकी वजह से जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है टोयोटा का वो क्या है कि दे हैव स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द सप्लायर्स, और अपनी सप्लाई चेन को इतनी उन्होंने एफिशिएंटली मॉनिटर करते हैं जिसकी वजह से जो बार्गेनिंग पावर है सप्लायर्स की वो उनकी कम हो जाती है, जिसकी वजह से सप्लायर्स उनको ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकते, ना ही उनको डिग्रेड मटेरियल सप्लाई कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से जो टोयोटा है उन्होंने अपनी जो बार्गेनिंग पावर की बात करें सप्लायर्स के साथ उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द सप्लायर्स। नेक्स्ट है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। ये फोर्स स्पेशली थ्रेटनिंग तब होती है जब बायर्स को एक ईजिली सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है मार्केट में जो उनको कम प्राइसेस पे और बेटर क्वालिटी का मिलता है, तो जिसकी वजह से जो बायर्स हैं वो ईजिली स्विच कर सकते हैं फ्रॉम वन प्रोडक्ट और सर्विस टू अनदर विद लेस कॉस्ट, विद लिटिल कॉस्ट। एग्जाम्पल से ले सकते हैं, टू स्विच फ्रॉम कॉफ़ी टू टी डज नॉट कॉस्ट एनीथिंग अनलाइक स्विचिंग फ्रॉम कार टू बाइसिकल। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं? पहला है इफ़ कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट आर लो। सेकेंडली, इफ़ द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट इज़ चीपर देन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। थर्ड, इफ़ द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट इज़ इक्वल और सुपीरियर क्वालिटी कंपेयर टू द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, द थ्रेट ऑफ द सब्स्टिट्यूट इज़ हाई। तो इन फैक्टर्स के आधार पर जो सब्स्टिट्यूट्स का थ्रेट है कि देयर आर अवेलेबल एम्पल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट इन द मार्केट फॉर द सेम प्रोडक्ट और सर्विस, तो नए जो प्लेयर्स हैं वो आसानी से मार्केट में एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी अमंग कॉम्पिटिटर्स। ये जो फोर्स होती है मेजर डिटर्मिनेंट होती है कि हाउ कॉम्पिटिटिव एंड प्रॉफिटेबल एन इंडस्ट्री इज़। जो कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री होती है उसके अंदर जो फर्म्स हैं ये आपस में इतनी एग्रेसिवली कॉम्पिटिट करते हैं फॉर अ बेटर मार्केट शेयर विच रिजल्ट्स इन लो प्रॉफिट। और सबसे ज़्यादा राइवलरी कॉम्पिटिटर्स के अंदर इंटेंस तब हो जाती है जब बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं और सभी के सभी अपने जो सेल्स है अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। दूसरा, अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत कम है तब भी राइवलरी बहुत ज़्यादा है। तीसरा, हाई फिक्स कॉस्ट और हाई स्टोरेज कॉस्ट। अगला, लैक ऑफ डिफ्रेंसिएशन, लाइक जो बायर्स होते हैं दे कैन स्विच फ्रॉम वन ब्रांड टू अनदर, स्पेशली व्हेन जब पेरिशेबल गुड्स की बात करते हैं तो राइवलरी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि सभी को जल्दी होती है जितनी जल्दी वो अपने गुड्स को सेल आउट करें टू अवॉइड प्रोडक्ट ऑब्सोलेंस। या फिर जब हाई स्ट्रैटेजिक स्टेक्स होते हैं या हाई एग्जिट बैरियर्स होते हैं तो जो राइवलरी होती है बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाइड हो जाती है। तो इस पूरी वीडियो के अंदर हमने टोटल 5 फोर्सेस एनालिसिस को समझा। ये जो 5 फोर्सेस होते हैं ये एनालाइज करते हैं कि कितनी इंडस्ट्री लुक्रेटिव है, कितना आसान है उस इंडस्ट्री के अंदर एंटर करना या मुश्किल है, या कितनी अट्रैक्टिव है वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एंड सेल्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट्स प्लीज़ फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।